Assalamualaikum students. Today we are going to study class Mammalia and the topic is circulation. Circulation means the circulatory system, the movement of the blood in the whole organism, and also circulation is important for transfer of gases, nutrition, and also for the excretion of materials. सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में ब्लड की मूवमेंट का एक निज़ाम होता है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है जो गैसेस को पहुंचाता है बॉडी में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाती हैं। ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहाँ पे ब्लड लेके जाता होता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में शामिल हो जाती है। उसके अलावा on the other hand, waste materials, nourishment, waste materials भी ब्लड से ब्लड में शामिल किए जाते हैं जो बाद में बाहर निकाल दिए जाते हैं। और also nourishment जो फूड होती है वो भी ब्लड में डाल दी जाती है। Circulation is a very important topic. So from here we will study that four-chamber heart evolved from tetrapodomorph and synapse lineage. Synapse lineage और इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में। हम फोर चैम्बर हार्ट को फील करते हैं। फोर चैम्बर हार्ट इज हार्ट हैव फोर चैम्बर्स में चार खाने होते हैं और ये खाने क्या होते हैं कि completely सेपरेटेड होते हैं। कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है इनमें। The body have two main circuits. इसमें हमारे पास दो मेन सर्किट्स होते हैं। One is pulmonary circuit and systematic circuit. So you can see over here that the heart has two circuits. Pulmonary circuits that the heart pumps the blood to the lungs, and from lungs the blood comes back to the heart. So this circuit is called pulmonary circuit, and the systematic circuit is the heart pumps the blood to the tissues of the cells, so the tissues of the body, and then it's come back to the heart. And this is called a systematic circuit. Okay, we will talk it later in detail. Okay, so heart is hardworking beast for almost 7 times per day. Heart जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग है। 1 मिनट के अंदर पर डे, सॉरी मैं पर डे पढ़ गया हूँ। 1 मिनट के अंदर ये 70 दफा बीट करता है। यू कैन इमेजिन 1 मिनट में 70 दफा करता है तो 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 साल में कितना बीट करता होगा। एंड अनस्टॉप बाई नॉट स्टॉपिंग, ये कभी स्टॉप नहीं होता। तो स्टॉप होता है यू कैन नो कि क्या होता है। Small animals have higher heart rate than larger animals. जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका हार्ट रेट मीन्स हार्ट बीट रेट ज़्यादा होता है। हार्ट ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा दफ़ा 1 मिनट में बीट करता है। तो ये कि उनका साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। That's why the small animals have higher heart rate than that of the large animals. Okay. Next, we will know about some important things about heart of mammals. Mammals of the heart has four-chamber heart. It means that the two upper atria and the lower thick-walled ventricles. You can see over here that these are atria, atrium, and this is another atrium. This is called a right atrium, and this is called and left atrium. So, and this is other chamber is called the ventricle. This is right, and this is left ventricle. Okay, so we have four chamber heart, and they are completely separated by the septa over here. This is very easy. So, right and the left wall. Oh, one more important thing that upper atrial, lower thick wall. The lower means the ventricles. These are the lower chambers. इनकी जो walls होती हैं वो thick होती हैं, thicker होती हैं निस्बतन atrium के। atriums की wall निस्बतन thin होती हैं but ventricles की wall निस्बतन thick होती हैं। Okay, what right and the left halves of heart have two separate cones. तो हमारे पास
दो हाफ्स हैं मीन्स कि एक आधा हिस्सा ये वाला हो गया और दूसरा आधा हिस्सा ये वाला हो गया। ये अलहदा से पंप करता है और ये अलहदा से पंप करता है। इनकी कोऑर्डिनेशन होती है, बट ये पंपिंग, ये एक अलहदा पंपिंग ऑर्गन है। ये दो अलहदा खाने जो हैं इनका एक अलहदा पंपिंग के मकासद हैं और इनके अलहदा पंपिंग के अलहदा अलहदा हिसाब से पंप करते हैं। इट मीन्स दैट इज ड्यूल पंपिंग ऑर्गन। इसमें दो तरह की पंपिंग सिचुएशन मौजूद होती है। Next. Most of the heart is composed of cardiac muscle tissue, myocardium, and outer protective tissue epicardium, and inside heart is endocardium. जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है मोस्टली। ओके, और ये इसकी जिनको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, वो भी कार्डियक मसल टिश्यू का ही बना होता है। और इनसाइड हार्ट इज एंडोकार्डियम। जो हार्ट का अंदर वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। दिस आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। नेक्स्ट इज the tricuspid and the bicuspid valves are present and are called anteroatrioventricular valves. So you can see that over here there is a valve between the right atrium and the right ventricle। एक valve है उसका नाम है tricuspid valve। Now we are going to the bicuspid valve। Left atrium और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व पाया जाता है उस वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। वेरी गुड। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ओके, सो ये वॉल्व्स पाए जाते हैं। वॉल्व्स क्या होते हैं? वॉल्व्स हैव द एबिलिटी टू क्लोज एंड ओपन। ये बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ब्लड को गुजरने देते हैं और रोक को देते हैं, नहीं गुजरने देते। वॉल्व का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है। नेक्स्ट वी हैव pulmonary semilunar valve and aortic semilunar valve. What is semilunar valve over here? You can see that here is sorry, here is a semilunar valve. This is present और ये ventricle है नीचे हमारे पास। वेंट्रिकल, ये कौन सा वेंट्रिकल है? दिस वेंट्रिकल इज राइट। दाएं वेंट्रिकल से ये ब्लड यहाँ से जाता है और यहाँ पे वॉल्व है जो दाएं वेंट्रिकल और पुल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में है। इसको हम कहते हैं पुल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। और दूसरा हमारे पास होता है एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। सो ये एओर्टा। ओके, वी वर ऑन एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। These valves are between the left ventricle and you can see over here this is aorta. Okay? So that's called aortic semilunar valve. So these are the valves by which blood leaves the heart. Here you can see from ventricle it is going to left pulmonary artery, and you can see over here that's an aortic semilunar valve that leads from ventricle to the aorta. Okay, so next are the sinus venuses. First of all, we have to study some more important things about the heart. Then after that, we go to learn about sinus venuses or the arterial node. So here you can see that there is a structure of heart and how it functions. Here are four chambers: it's the right atrium and it's the right ventricle, and this is left atrium and this is left ventricle. In this case, you can see the colors. This is the red color, and this is also in red color, and this is aorta. Aorta is basically a bigger vessel, which is divided into arteries. So this is a bigger vessel of arteries and divided into arteries. So it's called aorta. What is this blue light? Blue vessel. This blue vessel is called vena cava. Vena cava is the bigger vein. Bigger vein means body vein,
जो जिसमें बहुत सारी वेन्स कलेक्टिवली इकट्ठी होती हैं, तो ये वेना केवा कहलाती है। जो अपना बहुत सारी वेन्स का ब्लड इसके अंदर आ जाता है, जमा होता है, तो दैट्स कॉल्ड वेना केवा। So this is superior vena cava and these are the inferior vena cava. Superior vena cava जो ऊपर की तरफ ब्लड को कैप्चर करती है या उसको जमा करती है और डिपॉजिट करती है नीचे की तरफ जो है, यहाँ से इसमें जो ब्लड आता है वो नीचे वाली वेन्स की तरफ से आता है। ओके, तो अब हम हार्ट का थोड़ा सा फंक्शन स्टडी करेंगे। Situation is this, that the left atrium, you can see over here, left atrium में oxygenated blood आता है और ये कहाँ से आता है? From pulmonary veins. These are the pulmonary veins. Remember one thing, veins are those vessels which carry blood from body to heart, and arteries are those vessels which carry blood away from the heart. Okay, so this is a vein. It means that the blood is coming from the vein to heart. ये दिल की तरफ खून लेके आती हैं जो वेन्स होती हैं, और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है pulmonary, pulmonary is the word which depicts the lungs. जो lungs को जाहिर करता है कि ये lungs की अलामत है कि ये pulmonary vein मीन्स कि ये lungs से वेन आती है और ये वेन ब्लड को दिल में लेके आती है। और ये कौन से खाने में आ रही हैं? Either in the left atrium. So लेफ्ट एट्रियम से जब खून आता है तो इसको ट्रांसफर किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको ट्रांसफर किया जाता है एओर्टा के अंदर। एओर्टा आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, और ये एओर्टा जो है आर्टरीज में डिवाइड होने के बाद आर्टरीज पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। पूरी बॉडी में इनका एक जाल होता है और ये पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है, बॉडी के हर टिश्यू में, हर सेल में। फिर उन सेल से ब्लड फिर से वापस आता है दिल के अंदर, और वो कौन सी नली के जरिए आता है? वेन्स के जरिए आता है। ये वेना केवा है जिसमें ऑलमोस्ट ब्लड की सारी वेन्स का ब्लड यहाँ से इसके जरिए दिल की तरफ आता है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि भैया वेन्स ब्लड लेके आती हैं, आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं। नाउ यू कैन सी दैट जब ब्लड बॉडी से आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो ब्लड के ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। That's why the blood that is coming from the body and the body tissues is deoxygenated. That's why the color over here is blue of vena cava, because vena cava have deoxygenated blood that is coming from the body tissues or body cells. And जब ये ब्लड पहुंच जाता है दिल की तरफ, ये कहाँ पहुंच रहा है? You can see this is coming into the left atrium, sorry, coming the right atrium. ये right atrium में ये ब्लड आता है वेना केवा से, और ये यहाँ पे राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। From right ventricle, it is pumped over here by pulmonary semilunar valve to the left pulmonary artery, and also there is a right pulmonary artery भी होती है इसमें, which is not being shown over here. So ये pulmonary arteries जो हैं ये blood लेके जाती हैं pulmonary artery सॉरी lungs की तरफ। तो लफ्ज जो है ना pulmonary artery, ये जाहिर करता है कि ब्लड जो है ना वो लंग्स की तरफ जा रहा है, आर्टरी क्योंकि ब्लड से दिल को दूर लेके जाती हैं टू द बॉडी ऑर्गन और बॉडी टिश्यूज। जब वो ब्लड फेफड़ों की तरफ या लंग्स की तरफ पहुंचता है तो वहां से होती है इनहेलेशन, हवा अंदर ली जाती है और उसमें ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऐड कर दिया जाता है फेफड़ों के जरिए। और फिर क्या होता है, ब्लड
लेफ्ट पुल्मोनरी वेन्स और राइट पुल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा की तरफ भेज दिया जाता है और एओर्टा आर्टरीज में वो हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ से ये ब्लड आ रहा था ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये आ रहा था पुल्मोनरी वेन के जरिए, और ये अब एओर्टा आर्टरीज इसको पूरी बॉडी में लेके जाएंगी ब्लड टिश्यूज की तरफ। जब ब्लड बॉडी टिश्यूज की तरफ जाएगा तो बॉडी टिश्यूज उसमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे। यूटिलाइज करने के बाद ये फिर इसको वापस वेना केवा के जरिए, वेन्स के जरिए दिल की तरफ इनटू द राइट एट्रियम में भेज देंगे, और राइट एट्रियम से ये फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये पुल्मोनरी ट्रंक और पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में भेज दिया जाएगा। फिर लंग्स ये ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेट के बाद लेफ्ट पुल्मोनरी और राइट पुल्मोनरी वेन्स के जरिए ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और फिर इस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा। Okay, so these are basically some important circulatory system that is involved that's involved closely depending upon the heart pumping. The heart pumping or circulation का एक complete methodology or a complete sketch है. So from here you can see there is the interventricular septum. This septum is basically the deviant between the ventricles. This is the right ventricle over here, and this is the left ventricle over here. So interventricular septum impediment deviant पैदा करता है. Papillary muscles are, these are the papillary muscles. These are responsible for creating muscles contraction and relaxation for the pumping of the heart. So these are that muscles over here. Okay, so next we are going to, there is another important thing, that is venous tissue is form of sinoarterial node serve as pacemaker. Pacemaker, what is pacemaker? Pacemaker nowadays is an artificial device which is used for conduction of electrical impulses for creating the heart to keep on beating. Okay, so ये एक पेस मेकर एक ऐसा आला है जो ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पैदा करता है, ऐसे इम्पल्सेस पैदा करता है इलेक्ट्रिकल, जिसकी वजह से दिल कीप ऑन पंपिंग करना जारी रखता है, वो रुकता नहीं है, जिनके हार्ट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास नोड है साइनोएट्रियल नोड। साइनस वेनस टिश्यूज की किस्म है। ये टिश्यूज साइनस वेनस के नाम से मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। It is present in other animals, but this is not present in mammals over here. So there are sinus venous type tissues. These are called sinoatrial node, and these serve as a pacemaker. अब हमारे पास ये sinoatrial node as a pacemaker काम करता है। ये कंडक्शन पैदा करता है, और इस कंडक्शन से जो हार्ट है उसके मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। The sinoatrial node initiates the cardiac cycle by producing an action potential that spreads over both atria, causing them to contract simultaneously. तो ये एक ऐसा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये जो एट्रिया हैं ये इकट्ठे ही कंट्रैक्ट होते हैं। Now the action potential is transferred from atrioventricular node. Now the action potential, you can see over here that there is interarterial septum. इसकी ब्रांचेस जो है ना इधर आ रही हैं, इस एट्रियम में और इस एट्रियम में, इस एट्रियम में भी आ रहे हैं और इस एट्रियम में भी आ रही हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जिसमें आयन की फ्लक्चुएशन की वजह से आयन ओपन से मूव करते हैं और मसल्स हरकत में आते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना साइनोएट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल ऐसा क्रिएट करता है कि ये दोनों जो एट्रियम हैं, दोनों एट्रिया हैं,
एट्रियम जो है ना ये सिंगुलर है और एट्रिया जो है ना ये प्लूरल है। ये दोनों एट्रिया एट ए टाइम कंट्रैक्ट करते हैं। और यू कैन सी ओवर हियर that there is a branches, ये इसकी branches जो है ना यहाँ से इस तरफ आ रही हैं and these are atrioventricle node। अब ये जो node है ये atria और ventricle node, क्योंकि ये ventricle की तरफ आ रही है और atria से आ रही है, इसको atrioventricle node कहा जाता है। और ये branches उसी SA node की ही हैं और ये भी एक्शन potential create करती हैं। Now it's coming right to below is the bottom। अब ये नीचे की तरफ ये एपेक्स ऑफ द हेड की तरफ आ रही हैं। एपेक्स जो होता है ये तकरीबन आखिरी कोना होता है और यू कैन सी दिस इज दीज आर द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ये बंडल ब्रांचेस हैं, किसकी बंडल्स हैं? बंडल ऑफ हिस। तो ये बंडल ऑफ हिस जो है ना ये ऐसे सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ये ऐसे बंडल ऑफ सेल्स हैं। सो यू कैन सी अभी इसकी ब्रांचेज में ये एक्शन पोटेंशियल जो है ना ये पैदा कर रही हैं और ये इसकी ब्रांचेज इधर भी आ रही हैं और इधर भी आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्किंज फाइबर। पर्किंज फाइबर में की सूरत में ये यहाँ पे आती हैं, यहाँ बंडल्स हैं और ये फाइबर्स बन गए हैं ताकि ये एट ए टाइम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। वेंट्रिकल्स भी एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके सो नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है उसका एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। अब दिल में जो खाने होते हैं एट्रिया वेंट्रिकल, जो उनकी कंट्रैक्शन होती है उसको हम सिस्टोल कहते हैं। और द फेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज डायस्टोल। और वो फेज जिसमें ये दोनों क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, तो उनको हम कहते हैं डायस्टोल। अब ये हमारे पास होता है कार्डिक साइकिल बेसिकली। व्हाट इज कार्डिक साइकिल? A cardiac heartbeat is a sequence of muscle contractions and relaxations called cardiac cycle। तो there is a sequence होता है जिसमें कुछ चीजें कंट्रैक्ट करती हैं, कुछ चीजें रिलैक्स करती हैं। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स के फास्ट रिदम है। there is a specific sequence। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। सो फ्रॉम हियर सिस्टोल एंड डायस्टोल को हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। So systole is basically phase of contraction and diastole is a phase of relaxation. So when atria are relaxing, filling with blood and ventricles are also relaxed। जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं ये ब्लड से फिल हो जाते हैं और वेंट्रिकल भी उसी टाइम रिलैक्स होते हैं। During diastole, because relaxing feed is a diastole, the blood returning to the heart enters the atria and drops into ventricles, so open AV nodes। You can see over here that ये रिलैक्स होते हैं तो ब्लड इधर से आता है और ये हमारे पास जो है ना ये AV वॉल्व है, सॉरी नॉट नोड्स, AV वॉल्व हैं, इनको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। तो ये वेंट्रिकल्स और एट्रियम के दरमियान वॉल्व हैं और ब्लड इधर आता है। ओके और एट्रिया को पंप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लड ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। सिर्फ 10% ब्लड जो यहाँ पे रिमेनिंग होता है उसको पंप करने के लिए, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए एट्रिया पंप करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर भेजते हैं। ओके सो जब ये ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है? सिस्टोलिक सिचुएशन होती है जिसमें वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड किधर चला जाता है? टू द different types of vessels। Okay, so this is a circulation in mostly human, so sorry, not in only in human, it's almost in all mammals। Now we will study some important thing about, some detail about the systematic circuit and the pulmonary circuit।
You can see over here that this is a heart and it is a pumping organ and is pumping the blood to the lungs. These are the lung capillaries and it's pumping blood to the lungs. This is the lung capillaries. And you can see right here, it's also pumping the blood to the systematic capillaries. And these are systematic capillaries are those capillaries which are the body of the living organism, body tissue of the living organism here. So in this case, the heart pumps the blood to the lungs capillaries, the lungs. ओके द हार्ट सॉरी द लंग्स टू द लंग्स कैपिलरीज और यहाँ पे जब ब्लड पहुँचता है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है क्योंकि फेफड़े जो है ना वो सांस लेने में हेल्प करते हैं और हवा को ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है नाउ ब्लड मूव टू द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल में भेज दिया जाता है अब यहाँ से दिल पंप करता है और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस फेंकता है इधर ब्लड टिश्यूज के पास बॉडी टिश्यूज इसमें से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं और इसको रीऑक्सीजनेट करके वापस दिल में भेज देते हैं दिस इज सिस्टमैटिक सर्किट दिल से बॉडी टिश्यू से दिल अब दिल फिर इस ब्लड को भेजता है फेफड़ों की तरफ या लंग्स की तरफ लंग्स ऑक्सीजन करके फिर इस दिल में वापस भेज देते हैं So this is a pulmonary circuit and this is systematic circuit. I hope you can understand well. Now we're forwarding one of the most important adaptation in eutherian mammals is for fetus. Fetus is present in a female body in the placenta, and fetus is a living organism that is not not getting birth till now. एक ऐसा जानदार जो एक फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद है और वो जिंदा है और वो कुछ दिन के बाद उसकी बर्थ हो जाएगी वो बॉडी से बाहर आ जाएगा that organism is living in that body वो उस बॉडी में रह रहा है और उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे फिर भी वो जिंदा है फेफड़े ऑक्सीजन देते हैं विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रहना इम्पॉसिबल So you can say what is the science behind this that organism can live even without your lungs, without its lungs. So you can see that exchange of the materials. अब इसमें ये बात जो है ये important है between the fetus and the mother is across placenta. Materials को exchange है mother और fetus में placenta के जरिए होता है और होता क्या है diffusion occurs. Diffusion occurs for nutrients, gas, wastes exchange between fetus and maternal vessels. So diffusion होती है. I have a figure for you to make you better understand about fetal circulation. So this is figure A and this is fetal and this is B and this is adult mammal ये जो फिगर है ये फीटस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताती है और ये शक्ल हमें मैमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताती है जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होता है जो फीटस नहीं है अब ये देखिए You can see over here this is placenta और ये mother maternal artery and this is the maternal vein और ये जो body है this is the fetus body now we can see the structure of the heart and its circulatory system. You can see over here that this is a blood artery. ये blood vessel है, it's coming to the heart. ये heart की तरफ आ रही है. Heart क्या कर रहा है? अब इसको heart pump करता है. You can see the heart is pumping. This is a right atrium. This is a right ventricle. राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है लंग्स की तरफ बट लंग्स आर इन्फ्लेटेड व्हाट हैपेंस लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा बट व्हाट इज दिस यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे ना एक
नाली है जिसको हम डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। अब ये ब्लड जब यहाँ से पहुँचता है राइट एट्रियम में, फिर ये राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ पे पंप कर दिया जाता है, जो हार्ट में नहीं जा पाता, सॉरी जो लंग्स में नहीं जा पाता, और ये कहाँ चला जाता है, बॉडी की तरफ चला जाता है, डक्टर से बॉडी की तरफ लेके जाती है, लीवर, गट, लीवर बॉडी कैपिलरीज, सॉरी लोअर बॉडी कैपिलरीज, और ये नीचे प्लेसेंटा वाले पोर्शन में जहाँ पे मदर की आर्टरीज पाई जाती हैं और वेंस पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास राइट एट्रिया है, ये हमारे पास एक ऐसा वॉल्व बन रहा है, ऐसी जगह बननी जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको एओर्टा यानी कि उन आर्टरी या उन नालियों में भेजता है जो ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती हैं और उसको बॉडी को ऑक्सीजन करती हैं। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब सिस्टम क्या चल रहा है ये देखें। यू कैन सी जब ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये यहाँ पे आके डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, और यहाँ पे भी, क्योंकि वो ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से एक नाली आ रही है जो इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली नालियों में ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है। ये नाली जब यहाँ से ब्लड लेके जाती है, यहाँ पे एक फीमेल मदर जो हमारे पास है उसकी आर्टरीज हैं, उसकी ब्लड कैपिलरीज हैं जो यहाँ से ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को एक्सचेंज कर देती हैं और बॉडी में और ब्लड में इंसर्ट कर देती हैं। किसके ब्लड में? ऑर्गेनिज्म जो फीटस है उसके ब्लड में। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ये जाके डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो मिक्सड होता है। हाईली ऑक्सीजनेटेड तो नहीं होता, बट इट इज ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाता है, और इस तरह जो ऑर्गेनिज्म है, जो फीटस है, वो माँ के पेट के अंदर जिंदा रहता है। So here is 4 steps that are very necessary to learn. Blood arrives via umbilical vein. So here you can see blood umbilical vein, and the ductus venosus shuns oxygen to blood from the placenta away from the semi-functional liver and toward the heart. Okay, so you can see इसे heart और semi-functional liver की तरफ इसमें जो है ना वो भेज दिया जाता है। ये देखिए, semi-functional liver और इसको heart की तरफ भेज दिया जाता है। Now you can see over here that oxygenated blood from the placenta into the right atrium. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लांट्स होता है वो यहाँ से ये इंटर द राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम में इंटर हो जाता है विया इंफीरियर वेना केवा। कौन सी वेना केवा होती है? ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा है, नीचे से जो आके आ रही है। ओके, नाउ हम पोस्टीरियर वेना केवा भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। The foramen ovale allows oxygenated blood in the right atrium to reach the left atrium. अब यहाँ से फोरामेन ओवेल होता है जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में भेज देता है, जहाँ से इसको ब्लड में, जहाँ से इसको बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पंप कर दिया जाता है। थर्ड, द डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट्स द एओर्टा। ये डक्टस आर्टरियोसिस होती है और ये एओर्टा के साथ कनेक्ट होती है विद द पुल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे पास पुल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स में लेके जाती है, और यहाँ से नाली जो है डक्टस आर्टरियोसिस कहाँ लेके जाती है? ऊपर एओर्टा में। यहाँ पे तो खून जाता ही नहीं है क्योंकि फेफड़े को जाता भी है तो फेफड़े ओपन ही नहीं होते, जिसकी वजह से इस तरफ खून जाने का फायदा कोई नहीं है, इसमें वो जमा ही नहीं होता, अपना ऑक्सीजन ऐड ही नहीं होती। सो नेक्स्ट, मिक्स्ड ब्लड ट्रेवल्स टू द हेड बॉडी बैक टू द प्लेसेंटा एओर्टा। जो मिक्स्ड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में वो करता है। अब उसके बाद होता है क्या है, यू कैन सी हमारे पास जो डक्टस आर्टरियोसिस इज कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटम आर्टरियोसम। ये बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, फॉर्म ऑफ लिगामेंट की शक्ल क्या कर लेती है जब फीटस की बर्थ हो जाती है। और हमारे पास जो ये फोरामेन ओवेल था यहाँ पे, जो ये मिक्सअप कर रहा था, जो हमारे पास
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का मिक्स कर रहा था, तो ये फोसा ओवेल्स में चेंज हो जाता है और ये एक कंप्लीट सेप्टम में आ जाती है। फोर चैम्बर्स बन जाते हैं विच आर completely separated. So that's all. This is something about the manual circulation. If you have any questions, you can ask us in the comments in my classroom. Take care. Allah Hafiz.